एक ऐसा प्रिजन है, एक ऐसी कैद है जिसमें कुछ लोग बंद हैं, उसमें से शायद आप भी हो। दिस इज योर स्टोरी, दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरीबडी हु इज स्टक, हु इज अडिक्टेड। यू आर स्टक एंड अनेबल टू ब्रेक आउट ऑफ योर ओल्ड लाइफ। दैट इज द रीजन आपको ये वीडियो शायद अच्छा लग रहा हो। दैट इज द रीजन यू नीड टू हियर दिस। दिस इज द रीजन व्हाई पीपल सीक one-on-one mentorship from me. This is the reason they want to read self-help books. They want to change, they want to improve. But change और improvement की need, desire आ कहाँ से रही है? Where is this desire for the transplantation coming from? तो मैं one-on-one sessions लेता हूँ. Sometimes they go as long as 2 hours, 3 hours. And you know what appears constantly, बार बार जो बात उभर के निकलती है, बात ये है कि बचपन में एक नैरेटिव स्टार्ट होता है लोगों के दिमाग में। एक स्टोरी लिखी जा रही होती है जो पता नहीं होता है कि लिखी जा रही है, बट वो लिखी जा रही होती है। लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। वो इवेंट्स उस स्टोरी को इन्फॉर्म करते रहते हैं। जो इंसान होता है, जो बच्चा होता है उस टाइम पे, वो उस स्टोरी को इंटरनलाइज करता है और एक लाइफ स्क्रिप्ट लिखनी चालू होती है जो कि धीरे धीरे बनती चली जाती है। लाइफ स्क्रिप्ट लॉजिकल नहीं है, बट ज्यादातर लाइफ स्क्रिप्ट सैड है, ज्यादातर लाइफ स्क्रिप्ट ट्रेजिक है, ज्यादातर लाइफ स्क्रिप्ट हार्ट ब्रेकिंग है, ज्यादातर लाइफ स्क्रिप्ट एक विक्टिम की स्टोरी होगी। टेल मी द ट्रूथ एंड इन्वेस्टिगेट व्हाट इज इनसाइड योर लाइफ स्क्रिप्ट। दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। वी ब्रेक दिस and we can move so fast that it is not only going to be illegal, how fast you will change, it will be unbelievable. It is possible, it is done, but the thing that is holding you back is that life script. If you don't change that, अगर वो चेंज नहीं हुआ तो फिर देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रोग्रेस। जो भी प्रोग्रेस होगी सुपरफिशियल होगी, क्योंकि हमको एक चीज मान लेनी चाहिए बिफोर वी गो फर्दर इनटू द लाइफ स्क्रिप्ट एंड हाउ टू चेंज इट। हम अपने पैटर्न्स के प्रिजनर्स हैं, हम अपने पैटर्न्स के मालिक नहीं हैं। हमारे पैटर्न्स हमारे मालिक हैं। हमारे पैटर्न्स चेंज नहीं होते। हम नई नई एक्टिविटीज कर लेंगे, हम नए कोर्सेज ले लेंगे, हम नए वीडियोस देख लेंगे, नई सेल्फ हेल्प बुक्स खरीद लेंगे, लोगों की बुक रिकमेंडेशन पढ़ लेंगे, लाइफ स्क्रिप्ट चेंज नहीं होगी उससे। There is something called shadow deep work in psychology, which is used to redefine that life script, which is what is needed, but it needs a very deep incision. It needs a complete surgery of the psyche to understand what has happened. Where all has it started from? Where is the story coming from? Let me ask you the question that I ask my mentees जब मैं उनके साथ deep dive session start करता हूँ तो, who are you? कौन हो आप? Who are you really? आप suppose करो सब कुछ मुझे बताना. You have to tell me everything you need me to know. Everything. Who are you? Where you come from? What happened to you? Why is the need to watch this video? Why the need to attend that session? What is driving you? What is the problem? Where are you stuck? What is it that I need to know about you? And they start from the basics. Sometimes they start from the job कि मेरी जॉब ऐसी ऐसे। मैं कहता हूँ नहीं जॉब नहीं, पीछे चलो। कहानी स्टार्ट कैसे हुई? दुनिया में ये जो प्राणी, this being, let the story be told from scratch. दुनिया में कहाँ से आया, कहाँ पहुंचा, किसके पास पैदा हुआ, आगे क्या हुआ उसके साथ, क्या क्या हुआ उसके साथ, क्यों आज यहाँ पर आया, वो लाइफ स्क्रिप्ट क्या है from the start, and then it starts to emerge. And you know what emerges? What emerges is a series of tragedies. What emerges is a series of problems. What emerges is a deep shame for not making their parents proud. Invariably, especially in Indian people, I've seen it predominant, this theme. What emerges is a series of problems and a series of self-blaming type behavior. What starts is a description of how they were pushed and pulled into various directions. They tell me about their school, they tell me about their college, they tell me about the performance that happened in school or college, they tell me about the problems जो उनको फेस हुई स्कूल और कॉलेज में। वो बताते हैं क्यों और किस हिसाब से, किसके कहने पे उन्होंने उसके बाद कॉलेज या अपने एजुकेशन के डिसीजन लिए, क्यों और कैसे वो डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, क्यों और कैसे फिर वो किसी ना किसी रिलेशनशिप में गए या नहीं गए, कैसे वो रिलेशनशिप खराब हुआ, क्यों और कैसे वो फाइनली अपने जॉब में पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्यों या कैसे वो कोशिश करते हैं। दे ट्राई, दे वांट टू ट्राई एंड दे आर नॉट लाइंग, दे रियली डू, दे ट्राई बट दे आर नॉट एबल टू ब्रेक आउट ऑफ इट। क्यों और कैसे, ये पूरी की पूरी कहानी चल चल के उनको ले आती है या मेरे सामने या मेरे वीडियो के आगे या इस टाइप के किसी भी कंटेंट के आगे। स्टोरी आपको वही मिलेगी मोर और लेस। दिस इज लाइव स्क्रिप्टिंग। जब ये सामने उभरती है, मैं आई कीप राइटिंग एंड नॉर्मली मेरा पूरा का पूरा पेज भर जाता है लिख लिख के, बट जब आप वो बात सुनोगे ना अपने खुद की, अगर आप खुद की लाइफ स्क्रिप्ट लिखोगे और अगर आप खुद से मेरे को खुद से बोलोगे, आप 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करके देखो, डू इट,
10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग कर, अपनी खुद की आवाज की, अपनी खुद की कहानी की। द क्वेश्चन इज हु आर यू रियली, कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई, कहाँ पहुंचे, किसके पास पैदा हुए, कैसे कैसे आपके डिसीजंस हुए लाइफ के, यहाँ पर कैसे पहुंचे हो एग्जैक्टली। पुश दैट इनटू चैट जीपीटी एंड आस्क इट टू क्रिएट अ लाइफ, आस्क इट टू फाइंड द पैटर्न्स, व्हाट आर द पैटर्न्स मिलेंगे आपको। यू विल बी मेकिंग सम मिस्टेक्स इन दैट लाइफ स्क्रिप्ट, विल नॉट बी एक्यूरेट। उस लाइफ स्क्रिप्ट में आपके जो सबसे बड़े डीमंस हैं वो छुप के बाहर निकले हुए हैं, वो दिखेंगे, पैटर्न दिखेंगे आपको, पैटर्न्स बाहर आएंगे आपके। आई हैव सीन 2 टाइप्स ऑफ केसेस, फंडामेंटली 2 टाइप्स। एक केस है जिसका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा है। आई जस्ट मेट दिस मेजर इन द आर्मी एंड ही वाज हैविंग ट्रबल। उसकी शादी में प्रॉब्लम थी, उसको एडिक्शन थी, ही वाज एडिक्टेड टू अल्कोहल, ही वाज नॉट डूइंग वेल। ना उसका वहां पर फौज में मन लग रहा था, ना उसको रिस्पेक्ट मिल रही थी, वो परेशान था। उससे जब बैक ट्रैक करके पता चला वो परेशान इसलिए था क्योंकि एट सम पॉइंट ही हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट इन हिमसेल्फ। एक गलती उससे हुई, उसके बाद क्योंकि उसका लोकस ऑफ कंट्रोल इतना ज्यादा इंटरनल था, उसने हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। उसने ये कंसिडर करा ही नहीं कि एडिक्शन लोगों को होती है, एडिक्शन लोग मांगने नहीं जाते हैं कहीं से। उसने ये कहीं नहीं पूछा, किसी ने उसको बताया नहीं कि भाई यू आर एक्चुअली अ विक्टिम हियर, यू आर ब्लेमिंग योरसेल्फ टू मच, यू नीड टू रियलाइज दैट नॉट एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, यू हैव जेनेटिक्स एंड देयर इज अ हिस्ट्री। जब फैमिली हिस्ट्री देखी तो लगा कि है कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे जो पास ऑन हुए हैं उसको। धीरे धीरे समझ में आया उसको और ये पैटर्न सामने आने स्टार्ट हुए। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। दिस यंग वुमन एक्सप्लेन्ड टू मी how she was born in a place in Jharkhand, disadvantaged, lower socio-economic status but comfortable, not very underprivileged but ठीक है। At some point 11वीं-12वीं में उसके पेरेंट्स एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, पटना या रांची टाइप की सिटी में शिफ्ट होते हैं। वहां पर एक्सपीरियंस होता है इनको पहली बारी रियल कंपटीशन क्या होता है। वहां पर लोग पहले से मिडिल क्लास की जो फाइट है वो चल रही होती है लोगों की, एंड पीपल आर ऑलरेडी एट अ वेरी गुड लेवल, तो वो compete नहीं कर पाते। those 2 girls are not able to compete, they are 2 sisters, they are not able to compete। उनके ग्रेड्स थोड़े गिरने लगते हैं, उनके मन में थोड़ी सी शर्म की फीलिंग पैदा होती है कि वो माँ बाप इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे, they are just not worth it, they are stupid, है ना। एक फीलिंग ऑफ शेम उनके अंदर स्टार्ट होती है। फिर उस बच्ची के दिमाग में धीरे धीरे ये इनकलकेट होना स्टार्ट होता है खुद ही से। उसका माइंड एविडेंस ढूंढना स्टार्ट करता है और एविडेंस मिलता है उसको कि उसमें कुछ दिक्कत है। वो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है और वो कॉलेज में जाती है, पर इस रिजर्वेशन के बेनिफिट को भी शी टेक्स इट एज अ साइन ऑफ गिल्ट। उसको लगता है कि उसका एडमिशन हुआ ही इसलिए क्योंकि वो रिजर्वेशन कोटा में थी। वो ये भूल जाती है कि रिजर्वेशन की पूरी पॉलिसी बनी ही एग्जैक्टली उस टाइप के केसेस के लिए है। शी वाज द राइट यूज केस फॉर द रिजर्वेशन पॉलिसी टू गेट कॉलेज एडमिशन इनटू दैट कॉलेज, बट उसके बाद दैट गिल्ट डज नॉट लेट हर गो, क्योंकि उसकी पढ़ाई में मेजर गैप्स आ चुके हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, बट उसको ये पता है कि उससे हो नहीं रहा है। उसको ये पता है कि उसकी बैक पे बैक लगती चली जा रही है। उसको ये पता है कि शी इज नाउ एन एम्बैरेसमेंट टू हर फैमिली, और ये करते करते वो कॉलेज से ड्रॉप कर देती है। शी ड्रॉप्स फ्रॉम कॉलेज। यू नो व्हाट शी डज नेक्स्ट? यू नो व्हाट शी डज? शी जॉइंस अ मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM टाइप स्कीम। कोई उसको बेवकूफ बना के MLM में ले जाता है। शी इज द परफेक्ट विक्टिम फॉर एन MLM टाइप स्कैम। ना उसके पास एक्सपोजर है, ना उसके माँ बाप के पास एक्सपोजर है, ना उसको कोई बताने वाला है। वो खुद अपने मन में हार चुकी है, वो खुद अपने मन में खुद को बेवकूफ और वर्थलेस करार कर चुकी है। वो खुद एविडेंस ढूंढ रही है। उसको एग्जैक्टली उसी टाइप के लोग मिलेंगे जिस टाइप के लोग उसको बेवकूफ बना सकते हैं, और यही होता है। वो जाती है MLM में, पहले स्टार्टिंग में कुछ पैसे वैसे बनाती है और लोगों को कन्विंस करती है, लोगों के पैसे और लगवाती है उसमें। ऑब्वियसली वो MLM एक पॉइंट के बाद सबसे पैसे लेके भाग जाता है, ऑब्वियसली, बट वहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। MLM के अंदर वहां पर उसको एक लड़का मिलता है। जिस टाइप का लड़का MLM में मिलता है उससे उम्र से थोड़ा सा बड़ा, वो भी उस टाइप का ही इंसान होगा। मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी विच इज अट्रैक्टेड टू MLM। कि आप लोगों को जब तक बेवकूफ नहीं बनाओगे, हाउ विल यू एवर बी सक्सेसफुल इन MLM। वो लड़का उसको अब्यूज करना स्टार्ट करता है, उसको पकड़ लेता है, फंसा लेता है। अब उस लड़की का गिल्ट ट्रिपल हो चुका है। अब उसके हिसाब से वो चौथा ब्लंडर कर चुकी है अपनी लाइफ में। पहले उसने स्कूल में ब्लंडर करा जो कि उसकी गलती नहीं थी, बट उसको पता नहीं चला। ये अभी तक शी हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड दिस। रो रो के मुझे पता चल रहा है, ये बता रही है, बट शी इज नॉट रिवायरिंग इट, शी इज नॉट रिफ्रेमिंग इट इन द प्रॉपर वे। पहला ब्लंडर उसका ये है। दूसरा ब्लंडर उसका होता है जब वो कॉलेज में जाती है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तीसरा ब्लंडर वो करती है MLM में जाके, जिसको भी वो रिकॉग्नाइज नहीं करती कि वो विक्टिमाइज हुई है।
दैट इज हाउ MLM वर्क्स. यू आर विक्टिमाइज. साइबर स्कैम जब होता है तो आपके साथ होता है, आप जाते नहीं हो कराने. विक्टिम साइकोलॉजी इज अ वेरी ब्रूटल थिंग. Victims many times blame themselves, but such is the situation which makes it worse and worse and worse. He goes into MLM, gets into an abusive relationship, finally is able to break out of that abusive relationship, gets into another relationship and is not able to sustain that relationship for some reasons. Now she is completely lost. Finally उसने एक बैंक की जॉब ली और अपनी लाइफ को वो संवारने की कोशिश कर रही है. वो परेशान है. ये पिछले 17 साल से चल रहा है लूप. 17 साल से यही स्क्रिप्टिंग चल रही है उसके माइंड में. कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, ऑल द टाइम शी इज थिंकिंग दिस एंड ओनली दिस. दिस इज हर लाइफ स्क्रिप्ट. उसके साथ 1 घंटा बात करके एक लाइफ स्क्रिप्ट इमर्ज होती है उसकी. द पैटर्न इज सो ऑब्वियस, दर्दनाक, मतलब पेनफुली ऑब्वियस. उसको बेचारी को पता ही नहीं है कि उसके साथ एक बारी गड़बड़ हुई बचपन में. वो गड़बड़ कंपाउंड हुई, बट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खुद को ब्लेम करती चली गई. फिर उसको समझाना पड़ा कि दिस इज नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग. ये थी उस लड़की की कहानी. अगर आपकी कहानी मैं पूछूंगा एग्जैक्टली व्हाई यू आर द वे यू आर, व्हाई यू आर फीलिंग स्टक, तो इस टाइप की कोई कहानी निकलेगी. आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है या एक्सटर्नल है मुझे नहीं पता, बट जो भी है कुछ ना कुछ बायस होगा, कुछ ना कुछ फ्लॉ होगा. दैट लाइफ स्क्रिप्ट हैज टू बी रीवायर्ड, रीरिटन. टॉपिक that I was speaking on is how you change your life so that it feels illegal. This is how you do it. Cutting out all the nonsense. This is what is holding you back. Find the demon. Face the cycle. The thing which is making you repeat the stupidity, that is making you hate yourself, the mistake you are doing, the affair you are into which you know you should not be into, जो गलत आदत है जो आपको पता है कि आपको नहीं करनी चाहिए बट आप कर रहे हो, उसको फेस करके उसको हटाओ. Once you face the biggest demon, everything else will fall into place. This is step 1. Step 2, we rewrite the life script. How do you rewrite the life script? I have one question for you that you must answer. Another one of those questions जो आप 10-15 मिनट लेके आंसर करो डिटेल में. The question is this. एक वर्जन है आपका, whoever you are, जो भी आप हो, जिस वर्जन को अगर आप असली में देख लोगे, एक्सपीरियंस कर लोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. मेरे से लकी कोई हो नहीं सकता. मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है? आई कांट बिलीव दैट दिस इज रियलिटी. व्हाट इज हैपनिंग टू दैट वर्जन? वो वर्जन कैसा दिखता है? उस वर्जन के पास कौन सी गाड़ी है? उस वर्जन का पार्टनर कैसा है? वो वर्जन करता क्या है? वर्जन कैसा सोचता है? उसको डिटेल में आर्टिकुलेट करना है. डिटेल में वो कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, और बिल्कुल ऑनेस्टली करना है. Does it work? Does he or she work? Does he or she not work? Maybe he or she doesn't need to work. If it doesn't need to work, then we know कि उसके पास कुछ बहुत अच्छे रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगे ताकि उसको काम करना ही नहीं पड़ रहा है. अगर ऐसा है तो एटलीस्ट वी विल हैव अ रोड मैप. Once that rewritten life script is created, the ideal life script is created and the faulty life script is corrected, we go to the third step. The third step is जो भी आपने कमिट किया है, जो आपकी लाइफ स्क्रिप्ट की डिटेल्स हैं, उसको लेके we work backwards and we ask a simple question. This is the third question you ask. The third question is, अगर वो रियल आइडियल जिसको आपने अभी डिस्क्राइब करा है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि वो करेगा, तो एग्जैक्टली 6 महीने में क्या करना होगा, 1 साल में क्या करना होगा, 3 महीने में क्या करना होगा, इस हफ्ते क्या करना होगा और कल क्या करना होगा. स्टेप नंबर 3 is you have to ruthlessly bring it down to numbers, action, precise action that has to be done tomorrow. जब आप ये कर लेते हो, आपके पास एक बहुत क्लियर रोड मैप एंड में होता है. This is precisely what you need to do if you want to change your life such that it feels illegal and there will be a real radical change, not superficial change, not cosmetic change, real change that completely wires you. One life-changing decision, one re-scripting of life narrative is all it takes. But it is one of the hardest things to do. One of the hardest things to do. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, it is a sad story. This is the sadness of the story. The story can't be rewired just like that. It needs a brutal look. In most cases, it needs a look from somebody else. किसी और का एक व्यू पॉइंट चाहिए होता है उस इंसान को ऐसा देखने में, ऐसा देखने के लिए जो एक डिस्टेंस से देख पाए, उसके बायसेस को कॉल आउट कर पाए, उसकी नॉनसेंस को या उसकी गलती को बोल पाए कि उसकी गलती है, और अगर नहीं है तो ये भी बोल पाए कि नहीं है. That is what you must do, ladies and gentlemen. I'm afraid I have no easy solutions to this problem, and if this is your story, then this is what you need to do. I hope to whatever extent it does, it helps you. Thank you.